اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ایپا مالادھاریوں کی کار آگ حادثے کی شکار وزیر یو ٹی قادر نے پیش کی ایک بار پھر انسانیت کی مثال. گنگولی میں کوسٹل سیکورٹی پولیس تھانے کا وزیر داخلہ جناب پرمیشور کے ہاتھوں افتتاح. مدرسہ تنویر الاسلام اور مدرسۃ الفائزات کا کامیاب سالانہ جلسہ. مولانا مقبول احمد ندوی اور مولانا محمد الیاس ندوی کے پرمغز خطابات. بی جے پی وزیر کا متنازع بیان, کہا کھادی کے بعد اب آہستہ آہستہ نوٹوں سے بھی ہٹیں گے گادی. یو پی اسمبلی الیکشن میں ممکنہ اتحاد کا خاکہ تیار, کانگریس کو 100 سے زیادہ نشستیں دینے کو تیار ایس پی. امریکی سفارتخانے کے القدس منتقل عالم اسلام پر حملہ تصور ہوگی, مفتی اعظم فلسطین کی اسرائیل نواز پالیسیوں پر تنقید. یو پی میں انتخابات کی آمد اور مسلمان. ناظرین, ہندوستان کی 5 ریاستوں میں انتخابات ہونے والے ہیں اور یو پی کا انتخاب تو انتخاب ہے, یعنی بڑا دلچسپ. دیکھنا نہ بھولیں اسی پس منظر میں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین, اب خبریں تفصیل سے. گنگولی. یہاں گنگولی میں نو تعمیر شدہ ساحلی سیکورٹی پولیس تھانے کا افتتاح ریاست کرناٹک کے وزیر داخلہ جناب پرمیشور کے ہاتھوں کل عمل میں آیا. افتتاحی کارروائی کے بعد انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرناٹک میں 350 میٹر لمبا ساحلی خطہ ہے. مچھلی شکار کے علاوہ کئی ساری غیر قانونی کارروائیاں اس پٹی کے ذریعے سے کی جانے کی کوشش کی جاتی ہیں. ملکی سالمیت کو بھی خطرہ ہونے کا بار بار خدشہ ظاہر کیا جا چکا ہے, اور پھر ممبئی حملوں کے بعد سے ساحلی خطوں پر خصوصی نگرانی رکھنا اور پھر ساحلی پٹی کو سیکورٹی فراہم کرنا لازمی ہو گیا تھا. اسی کے چلتے ساحلی علاقوں میں اس پر نگاہ رکھنے اور غیر قانونی نقل و حمل پر نظریں رکھنے کی غرض سے پولیس تھانوں کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. انہوں نے اس موقع پر ستمبر کی پہلی تاریخ سے سب انسپیکٹر کے عہدوں سے آگے کے افسروں کے لیے 2000 کی افزود رقم ماہانہ مشاہرے کے ساتھ دینے کی بھی بات کہی اور کئی سارے اہم سیکورٹی مسئلوں پر بات چیت کی. منگلور. کرناٹک کے شبری ملے مندر دھرمستھلا کو ہو کر لوٹ رہے ایپا مالادھاریوں کی کار آگ حادثے کی شکار ہونے کی وجہ سے مشکلات میں پھنسے افراد کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہوئے وزیر برائے اغذیہ جناب یو ٹی قادر نے ایک بار پھر سب کے لیے مثال بنے ہیں. فکر و خبر کے مطابق یہ حادثہ پمپویل نانتور میں کل شام پیش آیا. دھارواڑ کی کندگول سے تعلق رکھنے والے 5 افراد دھرمستھلا کے شبری ملے مندر درشن کے بعد مالادھار کر واپس لوٹ رہے تھے کہ پمپویل کے قریب اچانک ان کی کار آگ کی زد میں آ گئی. اس موقع پر بذر ہوائی جہاز ممبئی سے منگلور پہنچے یو ٹی قادر بولیرو نامی علاقے میں منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کی غرض سے جا رہے تھے کہ اچانک اس حادثے کو دیکھا تو فوری اپنی کار کو روکتے ہوئے اپنی کار میں موجود پانی نکال کر آگ پر قابو پانے کی کوشش کی. اس کے علاوہ ریت اور مٹی بھی نکال کر آگ پر پھینکنے لگے. فائر بریگیڈ کو پہنچتے پہنچتے پوری کار آگ کے حوالے ہو چکی تھی, جبکہ یو ٹی قادر نے کار پر سوار افراد کی مدد کرتے ہوئے کار میں موجود اشیاء کو نکالنے میں بھی ان کی مدد کی. پریشان مالادھاریوں کو واپس گھر پہنچنے کے لیے سفری اخراجات کا انتظام کرتے ہوئے کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی کی. اس موقع پر ان کے ساتھ دیپک پلار, سریش شکتی جوسف, پپوس, ینس کریم, سراج کنیا, رفیق امبلی موگرو نامی افراد بھی شریک تھے. وزیر یو ٹی قادر کی اس بار بار کی امدادی کارروائی سے اور ہنگامی طور پر تعاون فراہم کرنے پر عوام ان کی بارہا سراہنا کرتے رہتے ہیں. بھٹکل. مدرسہ تنویر الاسلام اور مدرسۃ الفائزات موڈیشور کا سالانہ جلسہ مدرسہ تنویر الاسلام کے احاطے میں کل بروز بدھ بعد نماز عشاء منعقد ہوا, جس میں ننھے منھے طلباء و طالبات نے بہت ہی بہترین انداز میں حمد, نعت, تقاریر, مکالمے اور ڈرامے پیش کیے, جس کو حاضرین نے بہت ہی سراہا. خصوصاً اخلاقیات کا درس دیتے ہوئے طلباء نے مکالموں کی شکل میں عوام کو ایک بہترین پیغام دینے کی کوشش کی. یاد رہے کہ پروگرام کی پہلی نشست بعد نماز عصر منعقد ہوئی, جو مغرب سے پہلے اختتام کو پہنچی, اور دوسری نشست بعد نماز عشاء شروع ہوئی, جو رات دیر گئے اپنے اختتام کو پہنچی.
जलसे में बतौर मेहमानान खुसूसी बानी व जनरल सेक्रेटरी मौलाना अबुल हसन अली नदवी इस्लामिक अकेडमी भटकल, मौलाना मोहम्मद इलियास नदवी और मोहतमिम जामिया इस्लामिया भटकल मौलाना मकबूल अहमद कोबट्टी नदवी शरीक थे। मौलाना मकबूल अहमद कोबट्टी नदवी ने इस मौके पर समाजी बुराइयों की जानिब नई नस्ल के बेरुझान पर तशवीश का इजहार करते हुए माशरे को बुराइयों से पाक करने और नई नस्ल को ईमान पर बाकी रखने की फ़िक्र करने की तलक़ीन की और कहा कि अल्लाह ताला ने हमें इस दीन पर कायम रखा और दीन की निस्बत ही की वजह से आज यहाँ हम जमा हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हमें दीन से मोहब्बत और लगाव है और दीनी तालीमात से भी खुसूसी ताल्लुक़ है। ये मजमा इस बात की भी शहादत दे रहा है कि हम में दीनी बातें कबूल करने की भी सलाहियतें हैं। वक्ती तौर पर हमें नागवारी होती है, लेकिन दीन की मोहब्बत में हम इन बातों को कबूल करते हैं और इसकी रोशनी ही में हम ज़िंदगी गुजारते हैं। याद रखिए कि हमें जो दीन की नेमत मिली है उसके पीछे हमारे असलाफ की कुर्बानियाँ हैं, जिन्हें हमें फरामोश नहीं करना चाहिए। मौलाना ने उलमा और सुलहा से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत आवाम को उलमा और सुलहा से बदज़न करने की तदबीरें की जा रही हैं और आवाम और उलमा का ताल्लुक़ ख़त्म किए जाने की कोशिश की हो रही है। हमें सबसे पहले उलमा पर एतमाद करते हुए दीनी मसाइल हल करना चाहिए और साथ ही साथ सुलहा और शहर के ज़िम्मेदारों पर भी एतमाद करते हुए उनकी बातों की रोशनी में हमें अपनी ज़िंदगी को ढालना चाहिए। दूसरे मेहमान खुसूसी मौलाना मोहम्मद इलियास नदवी ने अपने खिताब में कहा कि मदरसे के फ़ारिगीन भी किसी मैदान में कम नहीं हैं। हर मैदान में उलमा अब आगे आ रहे हैं और ये सोच अपने जहन से निकाल दीजिए कि मदरसे में पढ़कर हमारा बच्चा ज़्यादा नहीं कमा सकता। देने वाली ज़ात अल्लाह की है और अल्लाह मदरसे में पढ़कर भी दे सकता है और न पढ़ने से भी दे सकता है। मौलाना ने मदारिस की अहमियत और उसके तलबा के मकाम को वाज़ेह करते हुए कहा कि इस्लामी स्कूल में पढ़कर बच्चा बुनियादी दीनी तालीम से आरास्ता हो सकता है, लेकिन वो किसी भी सूरत में मदरसे में तालीम हासिल करने वाले तलबा की फजीलत हासिल नहीं कर सकता। मौलाना ने हिंदुस्तानी मुसलमानों की दीनी गैरत और हमीयत के ताल्लुक़ से कहा कि हमें इस मुल्क में दीन पर अमल करने की जो आज़ादी है वो किसी भी मुल्क में नहीं है और दीनी हमीयत की इससे बढ़कर और क्या मिसाल हो सकती है कि हिंदुस्तान में जब शरीयत में मुदाखलत की जैसी आवाज़ बुलंद की जाती है, करोड़ों मुसलमान सड़कों पर उतर आते हैं और अपनी दीनी हमीयत का सबूत पेश करते हैं, जबकि कितने ऐसे ममालिक हैं जहाँ शरीयत में मुदाखलत की आवाज़ नहीं बल्कि वहाँ मुदाखलत की जा चुकी है, उसके खिलाफ फैसला सुनाए गए, लेकिन मुसलमानों में वो दीनी हमीयत देखने को नहीं मिली जो हिंदुस्तानी मुसलमानों में है। मौलाना ने मज़ीद कहा कि आज के इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ प्रोग्राम से महजूज होना नहीं है, बल्कि प्रोग्राम में दीनी हमीयत पेश करने और अपने नौनिहालों को मदरसे में दाखिल करने की दावत दे रहा है। इस मौके पर इस्तक़बाल कलिमात मौलाना अब्दुर्रहीम गंगावली नदवी ने पेश किए और निज़ामत के फ़राइज़ मौलाना अबुल आला नदवी और मौलाना मुबीन खान नदवी ने बहुस्न खूबी अंजाम दिए। अम्बाला हरियाणा के वज़ीर सेहत अनिल विज ने महात्मा गांधी को लेकर मुतनाज़ बयान दे दिया है। वज़ीर अनिल विज ने कहा कि खादी के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता नोटों पर से भी गांधी जी की तस्वीर हट जाएगी। उन्होंने कहा कि जब से महात्मा गांधी की तस्वीर नोट पर लगी है तब से नोट की कीमत गिरना शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि गांधी के नाम से खादी पैंट नहीं है, बल्कि खादी के साथ गांधी का नाम जुड़ने से खादी डूब गई है, इसकी फ़रोख्त में कमी आई है। खादी के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ज़्यादा बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी के खादी से जुड़ने के बाद खादी की फ़रोख्त में 14% का इजाफा हुआ है। अनिल विज के बयान के बाद अपोजिशन बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ने अनिल विज के बयान की मजम्मत की है। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि गोडसे की नस्ल बीजेपी के लीडरों से इसी किस्म के बेतुके बयानात की तवक्को करनी चाहिए। खादी इस मुल्क की पहचान है। बीजेपी की मोदी हुकूमत दबाव की सियासत की अलामत बन गई है। मोदी जी खुद को गांधी जी से बड़ा साबित करने की नई लाइन खींचने में लगे हैं। बापू का नाम हटाना हो या ख़राब करना हो, गांधी इस मुल्क की रूह है। रूह को कभी जिस्म से अलग नहीं किया जा सकता। कांग्रेसी लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यही बीजेपी की सोच और उनका नज़रिया है। ये वही पार्टी है जिसकी शुरुआत इस नज़रिए से निकली है जिसने महात्मा गांधी का कत्ल किया था। आज अनिल विज जो कह रहे हैं ये वही सोच है, इस नज़रिए का बयान है। वहीं आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि ये हिंदुस्तान के नालायक बेटे हैं जो बाबा या कौम महात्मा गांधी को जलील कर रहे हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं। इस वज़ीर का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है। नई दिल्ली, समाजवादी पार्टी में जारी उथल पुथल से अलग अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए मुमकिन इत्तेहाद का खाका तकरीबन तैयार कर लिया है। चर्चा है कि असेंबली सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तकरीबन इत्तेफाक राय हो चुका है। यूपी के वज़ीर आला अखिलेश यादव कांग्रेस को कुल 430 असेंबली सीटों में से 100 से ज़्यादा नशिस्तें देने को तैयार है। अब ये तय नहीं हो पाया है कि किस पार्टी के हिस्से में कौन सी नशिस्तें आएंगी। ज़राए का कहना है कि यूपी कांग्रेस के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद खुद सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में इत्तेहाद को लेकर बातचीत आखिरी दौर में है। इसका इशारा इससे मिलता है कि इलेक्शन कमीशन में साइकिल इंतखाबी निशान को लेकर अखिलेश धड़े के दावे की कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे हैं। सियासी पंडितों का कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी
और कांग्रेस में इत्तेहाद होता है तो फितरी तौर पर शीला दीक्षित की वज़ीर आला के ओहदे की दावेदारी ख़त्म हो जाएगी। कुछ शीला दीक्षित भी इस तरह का इशारा पहले ही दे चुकी है। वैसे मुलायम सिंह यादव इस इत्तेहाद को लेकर अलग राय रखते हैं। वो तो अवामी तौर पर कई बार ऐसे किसी इत्तेहाद के इम्कान को मुस्तरद कर चुके हैं। बिहार असम्बली इंतखाबात से सबक लेकर मुलायम ने हमेशा इस तरह की इत्तेहाद की मुखालिफत की है। बिहार में महागठबंधन में कांग्रेस ने सबको चौंकाते हुए 41 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था और 27 असम्बली नशिस्तें हासिल की थी। मकबूजा बैतुल मक़दिस। मुफ्ती आज़म फ़िलिस्तीन और मस्जिद अक्सा के इमाम व ख़तीब शेख महमूद हुसैन ने नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइल में अमरीकी सिफारतखाना बैतुल मक़दिस मुंतकिल किए जाने के ऐलान की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। उनका कहना है कि अमरीकी सिफारतखाने के मकबूजा बैतुल मक़दिस मुंतकिली पूरे आलम इस्लाम पर हमला तस्वुर होगा। अल अरबिया के मुताबिक मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए शेख मोहम्मद हुसैन ने दो टोक अल्फाज में बैतुल मक़दिस का दिफा किया। उन्होंने कहा कि अगर अमरीकी सिफारतखाना तिल अबीब से बैतुल मक़दिस मुंतकिल किया जाता है तो ये दुनिया भर के मुसलमानों पर जुल्म के मुतरादिफ होगा। उन्होंने कहा कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसराइल में अमरीकी सिफारतखाना बैतुल मक़दिस मुंतकिल करने का वादा सिर्फ फ़िलिस्तीनी कौम ही नहीं बल्कि अरब ममालिक और पूरी मुस्लिम उम्मा पर हमले के मुतरादिफ होगा। ऐसे किसी भी इक़दाम पर आलम इस्लाम और अरब ममालिक खामोश नहीं बैठेंगे। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारी वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएं। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप अपने नए घर के लिए डाइनिंग टेबल खोज रहे हैं? सोफ़ा सेट, टी टेबल, कैबिनेट अलमारियों से अपना नया घर सजाना चाहते हैं तो जल्दी करें। मदीना कॉलोनी में वाक़े अली एजुकेशनल बुक हाउस में आपको रियायती दामों के साथ बेहतरीन और उम्दा क्वालिटी के सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, कैबिनेट अलमारियाँ, टी टेबल और नित नए डिज़ाइन के आपके पसंद के फ़र्नीचर दस्तियाब हैं। जल्दी कीजिए, महदूद स्टॉक है। राबिते के लिए इस नंबर का इस्तेमाल करें 8150939399।